Look students, my today's topic is value of calculation of correct arithmetic mean. So how the correct arithmetic mean is calculated. So in these type of questions, there may be that question says, look what I am reading now according to your correct arithmetic mean. Formula is x mean equals to sigma x wrong value. जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी वो रॉन्ग वैल्यू है जो भी है। करेक्ट वैल्यू क्या थी उसको प्लस करेंगे माइनस रॉन्ग वैल्यू और डिवाइड बाय एन, ये है इसका फॉर्मूला। सो लुक क्वेश्चन, द एवरेज रन स्कोर ऑफ 11 प्लेयर्स इन ए क्रिकेट मैच। मतलब आपके पास 11 प्लेयर्स हैं तो दैट मींस योर नंबर इज 11 एन 11 and average run scored of 11 players cricket match was 30। average run का मतलब है x mean, so x mean for 11 player is 30। later on it was found that the one player or one batsman actually scored 52। it means actually scored, that means the जो उसने सही रन बनाए थे, जो करेक्ट रन थे वो उसके थे 52, बट हिज स्कोर वाज रिटर्न एज 41। इसका मतलब जो करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी दैट शुड बी 52 और आपके पास जो रॉन्ग वैल्यू है दैट इज 41। नाउ कैलकुलेट करेक्ट अर्थमेटिक मीन। अब आप इसको सही करके दोबारा निकाल दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी क्या करना है, आपको सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला निकालना है। सिग्मा एक्स रॉन्ग कैसे निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, ये सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला, इसको निकालने का तरीका है कि कितने आपके पास मीन था इनटू एन कितना है। तो वो जो मीन है वो सब रॉन्ग वाला ही है यहाँ पर, तो एक्स मीन आपके पास है 30 इनटू एन है आपके पास 11, तो ये हो गया 330। ये हो गया सिग्मा एक्स रॉन्ग। अब इसके बाद आप फॉर्मूले में लगाइए, फॉर्मूला होता है एक्स मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला प्लस करेंगे रॉन्ग वैल्यू माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे करेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू डिवाइड बाय एन। तो सिग्मा एक्स आपके पास निकालना है करेक्ट वाला, तो अब सिग्मा एक्स रॉन्ग वाला कितना है 330 प्लस करेक्ट वैल्यू कितनी थी, देखो करेक्ट वैल्यू है 52 माइनस रॉन्ग वैल्यू है आपके पास 41 सॉरी डिवाइड बाय 11। दिस इज एक्स मीन न्यू। सो नाउ यू कैन सॉल्व इट। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो दिस इज 341 डिवाइड बाय 11, तो आंसर इज 31। दिस इज द करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट अर्थमेटिक मीन। तो जो पहले आपका आंसर मीन का 30 आया था, अब है आपके पास 31, तो दिस इज करेक्ट वैल्यू निकालने का तरीका। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन फॉर द सेम एज प्रैक्टिस। If you have any doubt, you can raise your hands. Now, look the students, the next question at your screen, you have to find correct arithmetic mean in this question as well. So read carefully and try to solve the same just I did right now. I'm giving you 2 minutes. When you're done, you can send the answers to me or raise your hand. फिर से उसे बता देते हैं. So look students, what you have done in this question. So x mean equals to sigma x wrong one minus wrong value
plus correct value divided by n. So now x mean is equals to sigma x wrong one, तो 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 48 उनका मीन है, तो दिस इज 4800 माइनस wrong value that it was one students misread as 83 instead of 53, तो 83 was the wrong one और correct value is 53 divided by 100. So finally you can calculate it as 47.7. You can take screenshot or further you can also calculate by your own. This is the solution of this question. Now look students, I am giving you one more question for practice purpose. So read this question carefully. The question says the average marks secured by 50 students was 44. So average is 44 and there are 50 students. It was discovered that the score was 36 was misread as 56. अब ये आपको समझना होगा कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है. अगर इंग्लिश आती है तो ठीक, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको. The score was 36 misread as 56. Find the correct average marks. So I'm giving you some time, try to solve this one. So look students, what the question says. In this question, the average marks secured by 50 students, that means your n is given as 50, was 44, that means average 44 hai, that means this is 44. Later on it was discovered that score was 36 was misread as 56, that means wrong value is given as 56 whereas the correct value should be 36. Now in this question, now you have to do x mean is equals to sigma x, that one wrong, minus wrong value plus correct value divided by n. So you can 50 multiply by 44. Now minus wrong value, that is 56, plus correct value, that is 36. Now n is 50. Now you can solve it. So it is 12, 22, 36. नहीं 2200 था ये पूरा. 2200 minus 56 plus 36 divided by 50. So finally it is 2180 divided by 50. It is 43.6. So this is the solution for this kind of question. I hope you understand this topic. Now students, my next topic is very important topic for you, and that is the combined mean. So look how combined mean is calculated and what is the actually meaning of combined mean. So look students, this is the example I am telling you. So combined mean, to calculate combined mean, the formula is calculated like this one, as you can see here. So this is the formula. Combined mean can be possible for 1, 2, 3, 1 का तो नहीं होगा, 2, 3, 4 जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं उन सबको हम प्लस कर सकते हैं, तो वो हमारे पास combined mean होता है. So for combined mean, the actual formula can be for 2, 3, any value can be possible. So this is the formula, as you can see, n1 x mean 1 plus n2 x mean 2. ये ऐसे ही हम प्लस करते जाएंगे जितनी भी वैल्यूज उसमें गिवन होंगी. कंबाइन करना है, जैसे एक का कंबाइन करना है, 2 का, 3 का, 4 का, जितनी का कंबाइन करना है उतने ही आप ऐसे काउंटिंग को बढ़ाते चले जाएंगे और नीचे n1 n2 उन सबका प्लस करते जाएंगे. सपोज करो क्लास में आपके 2 सेक्शन है, सो सेक्शन ए और बी, तो आपको क्या करना है, n1 1 और n2 2 बार लिखना पड़ेगा. अगर सेक्शन सी भी है तो फिर आप n3 हो जाएगा और सेक्शन डी भी है तो n4 हो जाएगा. तो आई होप मेरी आप बात को समझ गए कि जितने भी आपको कंबाइन करना है उतनी बार n आएगा वैल्यू के अंदर. उसी तरह से आपको क्वेश्चन में वैल्यूज भी गिवन होंगी. सपोज करिए क्वेश्चन हमने दिया है
if average marks of 30 students is 50 and 40 students is 60, तो आपके पास दो सेक्शन हो गए, सपोज करो सेक्शन ए और सेक्शन बी। एक सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं, और उनका जो एवरेज है, एक सेक्शन का एवरेज है आपके पास 50 और दूसरे का एवरेज है 60। तो इसका मीनिंग अब हम क्या लिख सकते हैं, ये है n1, ये है x मीन 1, दिस इज n2 एंड दिस इज x मीन 2। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। नाउ कैलकुलेट मीन ऑफ ऑल 70 स्टूडेंट्स। तो ऑल 70 में कौन से, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कंबाइन करना है, यानी टोटल 70 बच्चों का हमको मीन निकालना है कि 70 बच्चों का मीन कितना होगा। अभी इंडिविजुअली तो पता है कि 50 बच्चों का, कुछ बच्चों का 30 बच्चों का 50 है और 40 बच्चों का 60 है। हमें पूरे 70 बच्चों का पता करना है कि मीन कैसे होगा। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला आप देख रहे हैं, दिस इज द फॉर्मूला x मीन 1 2, x मीन 1 2, यानी दो क्लास का हमें कंबाइन किया, n1 x मीन 1 प्लस n2 x मीन 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अब देखिए जो हमने गिवन है यहाँ पर x पहले आ गया n1 कितना था 30, तो 30 इंटू 50 है आपके पास, ये तो 30 इंटू 50 ये वाला आ गया, फिर 40 इंटू 60 इसको हमने इधर कर दिया। आप देखिए मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ, दिस वन। सो लुक 30 एंड 50 इन दोनों को हमने इंटू किया, इस वाले में आ गया, 40 60 इन दोनों को इंटू किया, इसमें आ गया, ये फॉर्मूले वैल्यूज थी, फिर प्लस कर दिया n1 प्लस n2, तो n1 प्लस n2 प्लस करने पर हमारे पास कैलकुलेशन करेंगे तो 55.71 आपका आंसर आया। दिस इज द कंबाइंड मीन। फाइंड करने का आपके पास वे है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, देन आई विल गिव यू क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस पर्पस। So look students, how this question can be solved. So as you can see in this question, what we have given, so average height of 20 students in a school is 61 centimeter. So n1 is 20, x mean 1 is 61, and the average height of 30 students is 58. That means n2 is 30 and x mean 2 is 58. Calculate combined mean. So combined mean x mean 1 and 2. That means n1 x mean 1 plus n2 x mean 2, n1 plus n2. Now you can put the values in this equation. So n1 is 20, इन अब बीच में कोई मार्क नहीं है तो इनटू का मार्क आएगा, x मीन 1 61 प्लस n2 30 इंटू 58 20 plus 30. Now you can solve this. So if you solve this one with proper calculation, so suppose 20 into 61, it's a 12, 20 plus 30 into 58, it's a 1740 divided by 50. Finally 2960 divided by 50. So finally answer is 59.2. This is correct combined mean of all 50 students. You can take screenshot for this one.